Okay, so Ankit, let's proceed ahead with your HR for IOCL. So, Yes, sir. your brief introduction, Ankit. My name is Ankit Srivastava. I originally belongs to Gwalior, Madhya Pradesh. I completed my schooling at my hometown Gwalior by securing 87.3% in 10th and 91.5% in 12th standard. For further education, I moved to Indore. I have completed BTech in Mechanical Engineering from SGSITS Indore, a government college, and by securing 75.9 percentage and also get full fee waiver in my BTech based on my academic and the joint entrance examination. I have successfully completed my BTech project along with my team members of automatic stamping machine and also went for 4 weeks observation training at Hyundai plant Gwalior. Uh, I am interested in animal care and worked as a volunteer in Animal Welfare Society. And I am also regular in diary writing, and it's my hobby. I have also scored All India rank 43 in GATE 2021 mechanical. Okay, Ankit, Yes, to sir. start with your, you've done project on stamp machine. Huh? Stamping machine. So can you tell me the mechanism used in that? Yes, sir. There are two mechanisms used in that project. First one, the main one is the beam engine mechanism, which is the first inversion of 4-bar chain mechanism, and the second mechanism is slider crank mechanism. Mhm. Yes, Okay, these two so mechanisms were used. okay, so Yes, sir. Ankit, you have gone for your internship or training in which plant you said? So dealership internet Hyundai. Hyundai, Four yeah. weeks observational training. Yes, sir. So what did you observe there? So basically, our task was to see the common faults that are coming in the Hyundai vehicle. Like in the Verna, there are the fault in the gearbox. So if same fault coming in more than 50 vehicles, then we send a feedback report to the manufacturing plant to rectify that problem in the vehicle. Mhm. Okay. So, did you do anything related to engineering, or it was just like executive activities? Yes, sir. Basically related to engineering, sir, I did the complete practical observational clutch on wheel alignment, on the caster camber toe angle, and on the automatic braking system, ABS system. Hmm. Anti-braking system, huh? Yes, sir. Anti-lock braking system. So, what is the principle behind that ABS? So basically, sir, when we take a turn, when we apply the brake on the vehicle and move the steering, then what happens? The steering lost its control when the ABS is not installed. But due to this problem, the ABS system is installed in which there is a modulator unit, which basically when the vehicle stops, then as per no slip condition, when we move our steering, then basically since the velocity at the point must become zero for the no slip condition. What is the When the vehicle performance of tire is, ABS system during rainy days, monsoon, जब rain होता है? so basically ABS system prevents the interlocking of the brake by basically releasing the brake pedal as the modulator unit sends the signal. Yes, sir. Advantage क्या है उसका? During rainy season, सर एडवांटेज ये है एबीएस सिस्टम का। सर दो एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो ये है मेरा स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खो देता हूं जैसे कि मैं ब्रेक लगाता हूं। एबीएस सिस्टम का यूज ये होगा जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे व्हीकल कंप्लीट उसका टायर कंप्लीटली लॉकअप नहीं होगा। टायर मॉड्यूलेटर यूनिट हल्का हल्का सा व्हीकल टायर रोटेट करता रहेगा इंटरमिटेंटली, जिससे अपने स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल लॉस नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज ये है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है एज कंपेयर टू अ व्हीकल इन विच द एबीएस इज नॉट इंस्टॉल्ड। Okay. Okay. Now, Ankit, you write diaries also. Huh? Since how long Yes, you sir. are writing diaries? Sir, from the beginning of my first year in the BTech. Okay. So, how many years now you are writing it? Sir, approx 4 years have been completed. How frequently do you write? Sir, basically, I I write. Sir, basically, I write off daily, but sometimes I have missed it when the workload is too high. कितनी डायरीज लिख चुके हैं अभी आप अभी तक? सर बेसिकली सर मैं अभी तक रिसेंट में सर अप्रोक्स सर मैं छोटी वाली डायरी लाया करता था मंथली वाली। सर मंथली तब अप्रोक्स सर 20 to 25 लिख चुका हूँ सर मैं डेली का। सर मैं अपना डायरी में सर कोई
जो डेली के मेरे टास्क होता है ना सर, मेरा आज मैंने जैसे सपोज कोई इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, मुझे कोई पॉजिटिव लर्निंग मिली, तो शॉर्ट में मैं उसको लिख लेता हूँ ये अपन को रेड ग्रीन पेन से, ये पॉजिटिव लर्निंग है। और सर कोई चीज अपन को सीखा कि मैंने कि ये चीज मेरे को नहीं करनी है, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ ये चीज मेरे को आगे भविष्य में नहीं दोहरानी है। दैट्स व्हाई आई बिकेम द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन द एवरी सक्सेसिव डे। तो आप डायरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लिखते हो? यस सर, सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर्पज के लिए लिखता हूँ सर मैं बस। अच्छा, आपको डायरी लिखने में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है? सर बेसिकली एडवांटेज तो मेरे को ये है सर, आज की सर प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन। डिप्रेशन का सर रीजन यही है, हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते हैं सर। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं हम प्रेजेंट सिनेरियो में शेयर भी नहीं कर सकते सर। डायरी राइटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि मेरे माइंड को रिलैक्स मिलता है, जिससे कि मैं क्या करता हूँ सर, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहा हूँ किसी से, सर रिलैक्सेशन फील होता है। सर दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो गलतियां सर अपन कर भी देते सर, यदि कोई सर मिस्टेक मैं एक बार कर रहा हूँ सर वो फॉल्ट है सर, यदि मैं मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ दूसरी बार तो सर ये प्रॉब्लम हो जाता है सर। डायरी राइटिंग से दूसरा एडवांटेज ये है कि मैं याद रहता है विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग दैट आई यूज इन द डायरी राइटिंग कि दैट मिस्टेक आई विल नॉट रिपीट इन द फ्यूचर सर। ये मेरा एडवांटेज होता है डायरी राइटिंग से। आप अपनी डायरी जो लिखते हैं किसी का शेयर करते हैं? सर बेसिकली आई यूज्ड टू लिव इन द हॉस्टल ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, so that's why I only my roommates see that I am writing the diary. ओके अंकित, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं यूसीएल? Sir, because IOCL is sir, सर महारत्न कंपनी है IOCL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और सर बेसिकली सर as our branch is mechanical engineering, so there are only there are the scope of the private sector is not too high as compared to the public sector undertaking. And the second reason is the pay scale. All these policies on private sector are not basically transparent, because in the public sector undertaking, they are working with the public money. So the policies are transparent. That's why I want to join with that firm in which I am basically, I can, there the transparency must exist. ओके, लेट मी गिव यू द फीडबैक अंकित। देखो, एक तो ये जो लास्ट वाला आपने कंपैरिजन किया ना, आपको प्राइवेट के यहाँ कंपैरिजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? डोंट से दैट प्राइवेट में ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आईयूसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि प्राइवेट अच्छा नहीं है, प्राइवेट में ये नहीं है, प्राइवेट में वो नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी आप सर 1 minute, I can change my internet connection. Sorry सर अंकित देखो, आपको ना प्राइवेट को क्रिटिसाइज मत करो, आप सिंपली बोलो आईयूसीएल में इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं सर, पब्लिक सेक्टर की महारत्ना कंपनी है और एनर्जी सेक्टर में डील करता है। एंड द सैलरी स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी गुड, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो वेरी गुड। तो आप आईयूसीएल वगैरह की एडवांटेज शो करो, प्राइवेट की डिसएडवांटेज यहाँ पे मेंशन मत करो। ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, ऐसा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप जो भी मुंह से बोलोगे वहां से क्वेश्चन वो पूछ लेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट में स्टैंप मशीन की बात किया तो वो मैकेनिज्म में जाएगा। अगर आपने डायरी राइटिंग की बात किया तो डायरी राइटिंग के बारे में पूछेगा, कब से लिख रहे हो, कितना फ्रिक्वेंटली लिखते हो, लास्ट टाइम क्या लिखा, अच्छी बात लिखते हो, बुरी लिखते हो, जो सबसे पुरानी डायरी थी वो कौन सी डेट को लिखी थी, उसमें क्या लिखा था, पहली डायरी में आपने पहले दिन जो लिखना स्टार्ट किया था क्या लिखा था, और डायरी लिखने का आइडिया आया कहाँ से, और कुछ ऐसे नाम बताओ जो बड़े बड़े लोगों के जो डायरी लिखा करते थे। फिर आपने एबीएस की बात किया तो वो एबीएस के बारे में आपसे पूछेगा और वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेगा। अभी ओवरऑल आपका फीडबैक ये है कि आप जो आंसर कर रहे हैं तो उसमें कई बार बहुत फास्ट आंसर कर रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है उसमें। जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया तो जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं और वो जस्टिफाई हो नहीं पा रहा है वो चीज। तो आपको वो चीज थोड़ा सा स्लो बोलना है, लिख के आंसर करना है। अब जब तक आपके इंटरव्यूज नहीं होते हैं तो आपसे बहुत से एचआर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सब के आंसर ढूंढना। जो जो आपसे पूछे जाएंगे वो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं आपसे रिलेटेड, और उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। हॉबी के बारे में आपने जो बोला उसका फाइंड आउट करो, क्यों आईयूसीएल ज्वाइन करना है, उसके बाद आईयूसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पहले आईयूसीएल क्यों ज्वाइन करना है इसको मास्टरी करो। स्टैम्प मशीन के बारे में सारा पता करो क्या है इसमें। डायरी राइटिंग के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया प्रोबेबल को क्वेश्चंस, वो आपको फाइंड आउट करने, वो ट्राई करेंगे देखने की कि आप लिखते भी हो जेन्युइनली कि नहीं लिखते हो।
तो आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू आंसर दैट, थोड़ा वो आपको करना है। बाकी रेस्ट आई थिंक गो स्लो, गो दिस थिंग इन टुडेज एचआर, दीज आर द क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट एचआर में कुछ और क्वेश्चंस होंगे, उनको भी अपडेट करना, उनको फाइंड आउट करना आंसर देने का। फाइन अंकित? यस सर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर ओवरऑल फीडबैक सर, मतलब सर कैसा रहा है सर आप इससे? नहीं, अभी फीडबैक मैं आपको अभी नहीं दूंगा, अभी कुछ एचआर और करो साथ में, इनको इम्प्रूव करो। So this was your first snap only. So let's not talk about feedback in first snap. इसको 2-3 एचआर दो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इम्प्रूवमेंट है, राइट? यस सर। ओके अंकित, थैंक यू।